Good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. This is the very first session of operating system course which is going to be completed here on this particular channel for GATE Computer Science. Yes, it will be completed and it will be in English language, English and Hindi mix. So let's begin the session, but before I start, let me just give you one particular statement from my father. When I started my preparation for GATE, I was very excited the way you are excited about this course. So what he told, you are very excited. Why you are excited? I told, yes, it's my GATE preparation starting today. So I'm very excited. He told, keep this excitement and passion till the last date of your preparation and you will be successful. I marked down those words and I still remember those words, and remember you also the same words कि आपको यही enthusiasm और यही excitement आखिरी दिन तक रखना है जब तक आपकी preparation अच्छे से खत्म नहीं हो जाती. And definitely my words, my trust you have that definitely you will be a successful person in terms of your GATE rank and in terms of your career. Okay, let's begin the session without any delay now. So before I start, let me introduce myself for those members who don't know about me. My name is Vishwadeep and I'm working as a channel leader on this channel, and I have written myself GATE exam multiple times. Ranks are 19, 119, 440, 682. There are few more ranks I am having. If you wonder why you write so many times GATE exam, just because I wanted to train you for some kind of thing for which I should have a mastery, and I tried it multiple times. That's why only I can give you the some kind of suggestion. So you can see all rest of my profile here. Of course, you can add operating system, C language, data science, machine learning, Python in these kind of subject taken here. I am taking all these subjects. I'm gonna take all these subjects on this particular channel for you. This channel is providing you lots of content for your learning, but you have more opportunity to learn on Academy's platform also. How you can go to unacademy.com or download an Academy Learner app, and there you can learn more and more free content. What are the free content? Special classes, test, practice sessions, quizzes and multiple other things. I will let you know more things later on also, but one thing for sure, if you are downloading the app or if you are going to unacademy.com, follow my profile so that you can attend my special classes which are absolutely free. To unlock the free content of Unacademy, you will require a code, and code is VDEEP10. This particular code will unlock lots of opportunity for you on Unacademy's platform. My special class, which is topic wise practice question. So many स्टूडेंट आस्क मी सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? यहां मिलेंगे. दिस इज द नेक्स्ट स्पेशल क्लास आई एम गोना हैव ऑन द अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म व्हिच इज ऑन 16th of May. That will be having this. What is this? 9:30 a.m. Sunday, 16th of May. You are gonna join me on Unacademy's platform for topic wise practice questions in data structure. A series of lectures I'll be taking on that. If you are preparing for GATE, then one thing for sure you will need, and that is a good quality learning, just because a normal learning and quality learning has a great difference in it. Quality learning means the learning in which you will be having all the perspective covered of a topic and through which whatever you have learned आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए. That is the major problem with all the students in this country who are preparing for GATE. So उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आपके पास Unacademy Plus का. Come on Unacademy Plus and learn the topics and concepts in such a way that you can solve the questions. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा और इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी कि क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आएगी कि नया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है. For that we have live classes which are very interactive, DPPs, doubt solving, weekly quizzes and multiple other benefits including educators गाइडेंस. तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. यू टेक योर सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन योर
ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन और योर टारगेट एग्जाम। अगर आप यूज करेंगे कोड VDEEP10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, साथ ही साथ आपको मिलेगा मेरा मेंटरशिप और साथ ही साथ मिलेगा आपको मेरी पूरी टीम का सपोर्ट। तो ये एक कोड है, सब्सक्रिप्शन कोड नहीं है, ये है ट्रस्ट कोड। जिस ट्रस्ट कोड को यूज करके आप मुझ पे और मेरी टीम पे ट्रस्ट करेंगे और मैं आपको पूरी बिल्कुल अच्छे से विश्वास दिलाता हूं कि डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट इन एंटायर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन है। दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर दोज मेंबर्स हु नीड मोर पर्सनलाइज्ड एंड मोर कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन। दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन विच अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं एंड देन यू विल बी हैविंग अ पर्सनल कोच फैसिलिटी हु विल गो for one-on-one guidance for you. Means you will get a preparation strategy which is customized and personalized for you. You will be getting study planner, your performance will be tracked, you will be getting special personalized doubt solving sessions, you will be getting study booster sessions, you will be getting personalized test analysis and extra material also for your GATE preparation. So this iconic subscription is available for only 12 months and 24 months, and again if you use the code this, then you will be able to get 10% discount plus my mentorship plus my team's support। एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 19th of May से, and this particular batch is going to have my course COA। this particular course if you will attend or somebody will attend, that fellow can tell you actually that how to learn a course to crack the GATE। that experience you will be having over there। so join Unacademy Plus as soon as possible and enjoy the best quality learning। चलिए फाइन, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट उसके पहले मुझे चाहिए आपका एग्रीमेंट। इफ यू आर रेडी, आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जल्दी से मैसेज कीजिए यू आर रेडी और नॉट, एंड जस्ट let me know that if you are ready, then we will begin the session। all those members who are wondering, sir, will you complete this series? Yes dear friend, I will complete this series। the classes will be live Monday to Friday evening 7 PM live। okay, so ready? If you guys are ready, let's begin the session। आज हम सिर्फ बेसिक और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एंड आई विल आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू फेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इन योर कंप्यूटर सिस्टम। कैन यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? यू गाइज हैव वेरी सिंपल डेफिनेशन अलॉन्ग विद यू। सबको एक ही डेफिनेशन पता है, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। पर उसका मतलब बताओ मेरे को, मुझे उसका मीनिंग जानना है। कैन यू इलॉबरेट इट? चलिए, तो अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक सिंपल से क्वेश्चन से। मैंने आपको दिया एक कंप्यूटर हार्डवेयर, the computer system I have given the best possible, the fastest possible CPU I have given, connected to it a 64 GB RAM, wow, super, right? A particular very fast SSD of 2 TB let's say, or let's say 4 TB, you are fascinating to see this, right? और जो आपको बाकी के सारे सिस्टम चाहिए सब ले लो। आपका बेस्ट क्वालिटी स्क्रीन, HD सुपर HD 4K स्क्रीन, अ गुड सुपर keyboard, mouse, camera and everything you are having। now I am saying in the SSD I have given you all your favorite movies and songs, watch it। मैंने आपको दिया उस पर्टिकुलर SSD में सारे जितने OTT प्लेटफॉर्म पे जितनी मूवीज और जितनी सीरीज है सब दे दी है, स्टोर्ड है ऑलरेडी, वॉच इट ना। यू कैन नॉट वॉच इट। उसके लिए आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपके हार्डवेयर से कनेक्ट हो, उस SSD की फाइल को रीड करे और आपके CPU पे उसको रन करके और स्क्रीन पे शो करे। ये कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। Who will do it?
operating system. So without operating system, you as user cannot do anything. For first and for the last, you will have to understand this. So what this operating system is, this operating system is a collection of programs. I am not saying single program just because it is having n number of programs, but it is a collection of programs. It's a software, understand, it's a software, but this particular software helps a user to use the computer hardware. If you want to use keyboard, only operating system can make you use it. If you want to install any application in your computer system or uninstall any particular application, if you want to create new file folder, if you want to watch or if you want to see whatever is there in your hard disk, every single thing is done by OS. So without OS, you cannot use the hardware directly. You need some kind of underlying operating system. Fine. Now I will give you the definition of operating system in different perspective. This is the very basic definition जो सबको पता है, right? Interface between user and hardware. यही आप भी जानते हैं? Yes. एक और चीज है, इसी चीज को दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है. हाउ? सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्टिंग हार्डवेयर. मींस व्हाट? This is the software which gives you a different view of the hardware. कैसे? इमेजिन करो, आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया, आपको अगर अपनी हार्ड डिस्क का कंटेंट देखना है तो आप क्या करते हो? माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हो. Yes, now on that my computer, what happens? In that my computer, you see different drives, C drive, E drive, F drive, something. That is what? This is the view of hardware you can see. Of hardware, which one? Your hard disk. So this operating system is showing you a beautiful view of your ugly hardware. Yes, these lines actually I have read in a book. This operating system gives you a particular what? A particular beautiful view of ugly hardware. So let's say you want to know that is there any camera attached in your computer system? If yes, then you will go into the devices and you will check what are the devices connected. You can see the list. So if you can see the list, operating system is actually showing the list. So hardware is ugly, of course, तार लगे हुए हैं, कुछ तो भी chips लगे हुए हैं, doesn't matter, I can see a beautiful simple view of that. Right? Now, what this operating system is for you? You means I am talking about software developers. I am talking about software developers. So if I am talking about software developers, then operating system gives you APIs. अब ये क्या होता है API? Full form बताओ पहले. API क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ पहले. What is the API? API is एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. ऐसे कुछ होता है. चलो API का सिंपल मीनिंग समझता हूं मैं. एक सिंपल सा मीनिंग बताता हूं मैं. एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है जो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त बनानी है. सिंपल ऑपरेशन यू वांट टू डू, बट दैट ऑपरेशन योर सॉफ्टवेयर कैन नॉट डू बाय इटसेल्फ. उसके लिए आपको लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प. क्यों लगेगी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, बट समझो कि आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक छोटा सा फंक्शन करना है, बट वो फंक्शन आपका सॉफ्टवेयर खुद से नहीं कर सकता, तो वो मांगेगा हेल्प किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी एपीआईज बना रखे हैं, मतलब छोटे छोटे फंक्शंस बना रखे हैं, और उन फंक्शन को कॉल करने की फैसिलिटी दे दी आपको. आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? आप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करोगे, आपका जो भी काम करना है ऑपरेटिंग सिस्टम कर देगा. बट ये फंक्शनैलिटी कैसे मिली? ये फंक्शनैलिटी इससे मिली, अ सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन. एक और तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज आपको एक ऐसा ऑपरेशन लिखना है जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम करता है. अब आपको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो आप वेबसाइट बना रहे हो या लेट्स से कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बना रहे हो, उस प्रोग्राम में आपको एक ऐसी फंक्शनैलिटी लिखनी है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम करे. तो उसके लिए आपको बैक एंड की हार्डवेयर कोडिंग आनी चाहिए. अब अगर हार्डवेयर कोडिंग नहीं आएगी तो क्या करोगे? कैसे
कैसे काम करोगे? असेंबली अगर कोड लिखना पड़ा उसके लिए तो फिर कैसे काम करोगे? अरे बाबा ये तो बड़ा टफ हो गया। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स ने आपका काम आसान कर दिया। उन्होंने क्या किया कि हम पूरा कोड लिख ही रहे ना, पूरा जो सिस्टम कोड लिख रहे हैं उसमें आपको कुछ छोटे मोटे फंक्शन दे देंगे हम, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते करते इन फंक्शन को यूज करो, आपको उसके बैकग्राउंड का कोड नहीं लिखना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए एक सेट ऑफ यूटिलिटी है। किस चीज के लिए? टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशंस, राइट। फिर देखा जाए तो गवर्नेंस के तरीके से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए अगर आप कभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना तो हम उसमें एक ही बात करेंगे कि सीपीयू सब कुछ है, बट सीपीयू सब कुछ नहीं होता है। सीपीयू इज लाइक अ हस्बैंड। सीपीयू इज लाइक अ हस्बैंड, ओनली इट टेक्स द इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट्स। ओके, दैट जोक्स अपार्ट, बट जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि सीपीयू जो होता है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेता है, एग्जीक्यूट करता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसका डिजाइन पूरा ऑलरेडी होता है। बट एक्चुअल controlling of computer system is done by this operating system. So operating system is that program which controls everything, when every device will be used, when CPU will be used, for how much time CPU will be used, when camera will be used, when this device will be used, when this will be used, everything will be controlled by this operating system. That's why I say it acts like a government. So operating system is the government of the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम के परमिशन के बिना सिस्टम में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, याद रखिएगा। यस, एग्जैक्टली। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर्स रहेगा वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन जो आज हम कर रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, फिर हम बात करेंगे और थोड़े ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म्स की पार्ट्स ऑफ ओएस क्या होते हैं, कर्नल क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या है, ये जो बेसिक आपको चीजें चाहिए वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, प्रोसेस कैसे स्टोर्ड होती है, कैसे बनती है, प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कंटेक्स्ट स्विच के बारे में बात करेंगे, वहां हमारे पास एक ट्रांजिशन डायग्राम आएगा। फिर उसके बाद हम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे शेड्यूलिंग की तरफ, तो सीपीयू शेड्यूलिंग, उसके डिफरेंट टाइप्स और स्पेशलिटीज, अलग अलग एल्गोरिदम्स की हम देखेंगे। फिर बात करेंगे थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये थोड़ा डीप जाएगा। और उसके बाद फिर हम सिंक्रोनाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक। ये वाला जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स को टफ लगता है, सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो माय टीचिंग स्टाइल्स, मेरे पास हर एक चीज को समझाने का एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ वाला, तो यहां भी आपको वैसे ही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के, और बड़ा ही मजा आएगा आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के। फिर हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। मेमोरी मैनेजमेंट में मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंसेप्ट्स आते हैं। वी विल स्टार्ट विद मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, फिर हमारे पास फिक्स्ड पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन, कंटीग्यूअस टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आएंगी। उसके बाद फिर हम पेजिंग और सेगमेंटेशन देखेंगे। पेजिंग में मल्टी लेवल पेजिंग आता है, टीएलबी आता है, कैसे एक्सेस होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को यह रहता है कि सर टीएलबी समझ में ही नहीं आया, कैश और टीएलबी में अंतर क्या है, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। फिर वर्चुअल मेमोरी देखेंगे। वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करता है, वर्चुअल मेमोरी क्यों यूज करते हैं, पेज फॉल्ट होते हैं वर्चुअल मेमोरी में वो क्या है, थ्रेशिंग क्या है, फिर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज वहां देखेंगे, और एट दी एंड हम देखेंगे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में फाइल सिस्टम होता क्या है, डायरेक्टरीज क्या होती हैं, डायरेक्टरीज के अलग अलग टाइप होते हैं। फिर फाइल सिस्टम में ही हम हार्ड डिस्क का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, डिस्क में ब्लॉक कैसे बनते हैं, डिस्क की पार्टीशनिंग लॉजिकल वाली कैसे होती है और उनका एक्सेस कैसे होता है,
एंड देन इंडेक्सिंग वगैरह जो भी हमारे पास फाइल एलोकेशन होती है वो सब इसमें देख लेंगे। और डिस्क का एक और टॉपिक इसमें आता है, वो है डिस्क शेड्यूलिंग। वो सब खत्म करके और हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे इतना इसी चैनल पे सेम 7 to 8 PM टाइम में। चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब आप समझ लो कि कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ होता है वो सब ओएस करता है, सब कुछ। हाँ ऑफ कोर्स आपकी मर्जी से होगा कि आप कंप्यूटर को बोलोगे कि भैया हमको क्रोम ओपन करके दो तो वो करेगा, बट करेगा कौन? ओएस। सबसे पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द इंटरफेस? जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बटन्स या फिर जो शो आपको होता है ओएस का, या जो कंप्यूटर का जब डेस्कटॉप दिखता है, या आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल में, फोल्डर में, या किसी एक फंक्शनैलिटी के अंदर होते हैं सेटिंग्स में जाके, तो वो सब इंटरफेस होता है जहां आप क्लिक करके या फिर टैप करके या डबल टैप करके या डबल क्लिक करके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ये ओएस का सर्विस है, ताकि यूजर इंटरैक्ट कर पाए इस ओएस से और ओएस फिर काम कर पाए यूजर के कमांड्स पे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आपको आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यू का। अगर वो टेक्निकल इंटरव्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछते हैं तो 80% टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कम से कम क्या होना जरूरी है। और कुछ नहीं हो चलेगा, दूसरे फीचर नहीं हो चलेगा, पर एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना सीपीयू पे। तो अगर आपने कभी बाई चांस ओएस पढ़ा है और मॉड्यूल्स देखे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट है ना, फिर शेड्यूलिंग, और फिर आपने सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फिर आपने डिस्क मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, ये सब मॉड्यूल्स अगर नाम सुने हैं कभी बाई चांस, तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू का, सॉरी ओएस का क्या है, तो वो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना सीपीयू के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए, दूसरी नहीं हो चलेगा। फिर आते हैं आईओ ऑपरेशन। आईओ का ऑपरेशन भी कराता है। कौन कराता है? यही कौन? ओएस। मतलब अगर बाय चांस मुझे प्रिंटर यूज करना है, मैंने किसी एक फाइल को ओपन किया, कंट्रोल पी या फाइल में जाके और प्रिंट ऑप्शन क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी और बोलेगी ये फाइल प्रिंट करा दो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर प्रिंटर पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। तो आईओ ऑपरेशंस भी कौन कराता है? ओएस ही कराता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, मतलब कि आपके सिस्टम में फाइल और फोल्डर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो ओएस करता है। राइट क्लिक करो, ऑप्शंस आ जाएंगे किसी फाइल पे, रीनेम करने के, कॉपी करने के, कट करने के, पेस्ट करने के, एक नया फोल्डर बनाने के, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने का, उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, सब कुछ जितना भी फाइल और फोल्डर से रिलेटेड काम है वो सब ओएस करता है आपके लिए। उसके पास ऑप्शन होते हैं, आपको सबको पता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन भी ओएस कराता है। अब आप बोलोगे सर दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है? एक चीज अभी मैंने बताई, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, वहां एक फाइल ऑलरेडी टाइप करके रखी है, वहां से आपने उस फाइल को प्रिंट कराने की कोशिश की, तो ये जो फाइल है ये किसके पास जाएगी? प्रिंटर के पास। मतलब प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो एक प्रोसेस है जो रन हो रही है, ड्राइवर प्रोसेस, और एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोसेस। ये दोनों में कम्युनिकेशन होगा कि भैया हम फाइल भेज रहे हैं, प्रिंट कराई लो, हम फाइल भेज रहे हैं, प्रिंट कराई लो। कौन बोलेगा? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलेगा। किसको बोलेगा? प्रिंटर के एक ड्राइवर को। बट ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, ओएस बीच में आएगा। ओएस बीच में आएगा और कम्युनिकेशन करवाएगा कि देखो ये कम्युनिकेशन करना है। सो हु विल डू दिस? दिस कम्युनिकेशन विल बी डन बाय ओएस इटसेल्फ। एंड दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल। फिर आती है एरर डिटेक्शन। एग्जाम्पल बताएं? अरे हर चीज का एग्जाम्पल है। सपोज मैंने एक पेन ड्राइव लगाई, उसमें एक फाइल है, एक मूवी 1 GB का। I am trying to copy that particular file in my hard disk. Copy is going on. Of course, it takes time in a flash. It doesn't complete, right?
So let's say file is going on, copy is going on. During the copy, you have removed the pen drive. When you have removed the pen drive, what happens? Operating system will detect this error that the source of the file is not present. So operating system will detect and will tell you that this particular source is not present with a small message on the screen that source of the file is not detected. Retry, cancel, okay. एरर डिटेक्शन, ऐसे बहुत सारे एरर डिटेक्शन हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, रिसोर्स अलोकेशन। अब ये चीज जो है आपको थोड़ा ओएस पढ़ने के साथ साथ और समझ में आएंगी। कैसे? व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स and when multiple processes are running, how you can say multiple processes are running? If you use Windows OS, do one thing, go to task manager. कैसे जाते हैं? या तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करो, ऑप्शन आएंगे, वहां टास्क मैनेजर मिलेगा, या फिर आप राइट क्लिक कर लो आपके टास्क बार पे जो सबसे नीचे दिखता है ना, वहां से टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। Go to task manager, see the processes. So many processes, hundreds of processes will run in background, आपको दिखेगी भी नहीं। सो हर एक प्रोसेस को रैम में जगह चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये कंफर्म समझ लो कि जब तक कोई प्रोसेस रैम में नहीं आती तब तक वो रन नहीं कर सकती सीपीयू पे। रैम में जगह चाहिए। रैम में जगह किसने दी? ओएस ने। रिसोर्स अलोकेशन, रैम का मेमोरी अलोकेशन कराया किसने? ओएस ने। कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे सीपीयू पे रन करेगी, ये भी रिसोर्स अलोकेशन कौन करेगा? कौन करेगा? ओएस। लेट्स से आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो हार्ड डिस्क एक्सेस करना चाहती हैं। अब हार्ड डिस्क का स्पीड ना थोड़ा स्लो होता है, जैसे वो बंटी का साबुन नहीं होता है, थोड़ा स्लो धोते जाओ वैसा थोड़ा स्लो है, ज्यादा नहीं। फाइन। तो अब अगर हार्ड डिस्क का ऑपरेशन स्लो है, 4 अलग अलग रिक्वेस्ट हार्ड डिस्क की पेंडिंग है, 4 प्रोसेसेस की। उन 4 में से किसकी रिक्वेस्ट पहले कंप्लीट करें, इसका अलोकेशन कौन करेगा? ओएस करेगा। सब कुछ कौन करेगा? ओएस करेगा, ओएस करेगा। एग्जैक्टली, ऑलवेज। फिर आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी कुछ कंप्यूटर सिस्टम में हो रहा है उसकी पूरी अकाउंटिंग ओएस करके रखता है। कैसे? ये भी आपको टास्क मैनेजर में दिख जाएगा, जाके देखो। टास्क मैनेजर ओपन करो, बहुत सारे टैब्स दिखेंगे। सीपीयू का यूटिलाइजेशन दिख जाएगा, मेमोरी में मेन मेमोरी कितनी यूज हो रही है ये पता चल जाएगा, डिस्क का परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना यूज हो रहा है, और हर एक प्रोसेस वाइज भी दिखेगा कि अच्छा ये प्रोसेस मेमोरी का इतना यूज कर रही है, सीपीयू का इतना, डिस्क का इतना। इसके अलावा और भी बहुत सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओएस मेंटेन करता है ताकि इस अकाउंटिंग के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस और सुधारा जा सके। कैसे? ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को भेज दें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल ने बनाया क्रोम, क्रोम ने क्या किया, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखी कि मेरा जो क्रोम है वो हर एक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर सिस्टम पे किस तरीके से रन होता है, कितनी मेमोरी लेता है, कितना सीपीयू लेता है। उसके बेसिस पे अगर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गूगल के पास पहुंचती है तो गूगल विल ट्राई टू चेंज दीज सॉफ्टवेयर्स और अपडेट दीज सॉफ्टवेयर्स इन सच अ वे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बेटर हो पाए, मेमोरी का यूसेज कम से कम हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसको मिले? यूजर को। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओएस मेंटेन करता है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी होती है इनके पीछे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हर चीज को प्रोटेक्ट करने का काम ओएस का, सिक्योर करने का काम ओएस का। सिक्योरिटी तो आपको पता ही है कैसे देते हैं। अगर एक पर्टिकुलर फाइल है तो उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए आपने अगर सिक्योरिटी डाल रखी है तो वो सिक्योर रहेगी फाइल, पासवर्ड से ही ओपन होगी। प्लस अगर आपने एक कंप्यूटर सिस्टम में कुछ पासवर्ड्स डाल रखे हैं तो जब तक आप पासवर्ड्स ओपन नहीं करोगे, पासवर्ड नहीं एंटर करोगे, तब तक वो नहीं ओपन हो पाएगा। तो कुछ हद तक सिक्योरिटी होती है। साथ ही साथ कुछ मलिशियस प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास में एक फायरवॉल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये फायरवॉल लगाता है ताकि अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर सिस्टम तो वहां कम से कम कुछ सिक्योरिटी रहे। ये प्रोटेक्शन जो है वो मल्टीपल चीजों का है। ये प्रोटेक्शन प्रोसेसेस को आपस में एक दूसरे से प्रोटेक्ट करके रखना भी प्रोटेक्शन है, बिल्कुल है। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दूसरी रनिंग प्रोसेसेस को अफेक्ट ना करे। यूजर्स अगर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर एक दूसरे के काम को अफेक्ट ना कर पाए। आईओ डिवाइसेस हैं तो आईओ डिवाइसेस जो हैं इस तरीके से रन कर पाए कि वो प्रोग्राम उन आईओ डिवाइसेस को अफेक्ट ना कर पाए।
मेमोरी में अगर दो प्रोसेसेस रखी हुई हैं तो एक दूसरे के एरियाज में स्टेप इन ना करें, वो इस टाइप के प्रोटेक्शंस आते हैं। हम और देखेंगे किस तरह से अलग अलग लेवल पे या अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं। फाइन, आई होप अभी तक आप सब लोग क्लियर हैं। आई कुड नॉट सी योर मैसेजेस जस्ट बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स। तो मुझे लगा कि शायद स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में आपको इतनी ज्यादा लेवल की क्वेश्चंस आएंगे नहीं। स्लोली स्लोली व्हेन वी विल गो इन द डीप आई विल डेफिनेटली चेक आउट योर मैसेजेस और आप लोगों के जो क्वेरीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, आप बोलोगे हम क्यों बनाए सर, ऑलरेडी इतने अच्छे हैं। कोई बात नहीं, अगर बाई चांस आप किसी ऐसी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं और वहां पे ऐसा काम करते हैं जहां ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट होता है उसी टीम में, लाइक लेट्स से यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड यू आर वर्किंग इन दैट टीम विच इज डायरेक्टली वर्किंग ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और वाइस वर्सा इन एनी अदर कंपनी यू आर वर्किंग इन, तो आपका गोल क्या होना चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते वक्त किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज है कन्वीनियंस। जितना ज्यादा कन्वीनियंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? जस्ट बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स। इनफैक्ट जिनको कंप्यूटर्स का टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो लोग भी इस कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा कन्वीनियंट है। सिमिलरली आप जब मोबाइल फोन्स आजकल के देखते हैं उनमें इतना ज्यादा कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आप इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गए हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस का बैरियर है, जिन्हें बहुत ज्यादा इंग्लिश या अदर लैंग्वेज नहीं आती है, वो भी बहुत आराम से यूज कर सकते हैं बटन्स देखते देखते। फर्स्ट थिंग। सेकेंड है एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके का हो कि वो हर रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज कराए। ऐसा ना हो कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम ही हो रहा है, वो 2% ही यूज हो रहा है, बाकी की प्रोसेसेस बहुत डिले होती जा रही हैं। तो किसी भी रिसोर्स को सबसे बेस्ट तरीके से यूज कराने के लिए एफिशिएंसी इंप्रूव करना जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो हर एक रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में एफिशिएंटली यूज कर पाए और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट एक यूजर को एक्सपीरियंस के थ्रू दे पाए। वरना आपने एक क्लिक किया, अब आप 3 मिनट तक बैठे हो कि इस क्लिक का रिप्लाई आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इतने में तो हम मोबाइल फोन चेंज कर लेंगे, नहीं चाहिए हमको ये फोन, दूसरा चेंज करेंगे हम, राइट? हैपेंस, राइट? नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हम बात करेंगे एक ऐसे इवोल्यूशन की जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में आया। सो let's talk about the very first generations of computer systems when the computer systems were machines with limited capability and operating systems. Not, I should not say operating system, but just because I should say some kind of softwares. Some kind of softwares were there working on those machines so that users can use it. But those softwares which were there acting as operating system were highly machine dependent. मतलब एक मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर उसी मशीन पे ही काम करेगा, बस दूसरे मशीन पे काम नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे करके when slowly when different types of computers came into the market, then this operating systems business came into the picture suddenly कि यार ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाओ जो हर किसी हार्डवेयर पे चल जाए। And that's how we have come with this particular idea, portability. एक ऐसा हार्डवेयर बनाओ जो कि इंटेल के किसी भी सीपीयू के साथ काम करे, रैम की किसी भी टाइप की रैम के लिए काम करे, किसी भी टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए काम करे। सो पोर्टेबिलिटी मींस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है जो कि हर टाइप के हार्डवेयर पे काम कर पाए। So if you talk about Mac OS, right, Macintosh, so that particular Mac OS is very particular to the Apple's computer.
and those are not portable. Why? Just because those are not being ported on other कंप्यूटर सिस्टम. आप किसी एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में नहीं यूज कर सकते, तो वो पोर्टेबिलिटी नहीं होगी. हाँ, एप्पल के अंदर पोर्टेबिलिटी है कि उनके अलग अलग जनरेशन में सेम टाइप का ओएस वो दे सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम एप्पल इट्स नॉट सो गुड पोर्टेबल. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए रिलायबिलिटी. नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी? ये रिलायबल भी होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं कम से कम वो काम तो कंप्लीट हो, इतना रिलायबल तो हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है. कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ है कंप्यूटर का या अपने फोन का? कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ है? क्यों अपडेट हुआ है? क्यों अपडेट हुआ है बताओ? क्यों अपडेट होता है? क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी को या फीचर्स को और थोड़ा एनहांस किया जाता है. करते हैं. तो जब आपने एक कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो क्या वो चेंजेस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग जगह पे करके और वापस से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो आपका ओएस स्केलेबल नहीं है. स्केलेबल का मतलब अगर मुझे और अच्छे फीचर्स ऐड करने हैं तो और अच्छे फीचर्स बिना अनस्टॉल किए उसी कंप्यूटर सिस्टम पे मैं कर पाऊं, अपडेट करने से काम हो जाए, तो वो होता है स्केलेबल ओएस. और ये है एंड्रॉइड ओएस आपका स्केलेबल है, बिल्कुल है. विंडोज भी है, क्योंकि इनमें जब अपडेशंस होते हैं तो अपडेट हो जाता है उसी कंप्यूटर में जो आपने ओएस इंस्टॉल किया है वहीं पे जितने अपडेशन करने हैं, सिक्योरिटी अपडेट हुए या फीचर अपडेट हुए, जो भी अपडेशन होने हैं हो जाते हैं. दैट्स इट. राइट. तो स्केलेबिलिटी क्या होती है? अगर नए फीचर्स ऐड करने हैं तो इट कैन बी इजियर प्रोसेस रादर देन कि मुझे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जहां पे ऑलरेडी अपडेटेड पार्ट है या अपडेटेड वर्जन है उसको डाउनलोड करके वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा. दैट्स अ टीडियस प्रोसेस. आई कांट डू इट. इसके लिए हम फीचर्स, हमको नहीं चाहिए फीचर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट. चलो अब आगे बढ़ते हैं. रोबस्टनेस. रोबस्टनेस का मतलब क्या है? रोबस्टनेस का मतलब है लड़ने की ताकत. अगर कुछ ऐसा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अनयूजुअल है तो उस अनयूजुअल को इजीली टैकल कर पाए, वो होती है रोबस्टनेस. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती, कुछ एप्लीकेशन रन करते वक्त या कुछ ऑपरेशन रन करते वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आती है, तो उस अनएक्सपेक्टेड एरर को या एक एरर को हैंडल कर पाए ओएस, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में रोबस्टनेस होना जरूरी है. तो आई होप आप सब लोगों को सब कुछ पता चल पा रहा है ये. राइट. जितने लोग ये पूछ रहे हैं कि सर पीपीटी कहाँ मिलेगी, पीपीटी एक टेलीग्राम चैनल है हमारा टीम का, उस पर मिलेगी. वो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम है अनअकैडमी गेट CS. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. हर एक क्लास के बाद पीपीटी में वहाँ ड्रॉप कर दूंगा, तो आपको इस पीपीटी में जो लिखा है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वही सिर्फ लिखना पड़ेंगे. फाइन. चलिए लेट मी फिनिश वॉट एवर आई हैव ब्रॉट टुडे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके पॉइंट्स के बारे में भी, जो भी आपको पॉइंट्स चाहिए. ठीक है. चलिए अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जब ओएस बनता है तो ओएस को बेसिकली दो पार्ट्स में बनाया जाता है. एक होता है कर्नल. कर्नल मतलब ओएस के जितने फीचर्स हैं कि प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, एफिशिएंटली हर एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, हर छोटी छोटी चीज का एक छोटा छोटा फंक्शन लिखा होता है. जितने ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सकता है हर एक ऑपरेशन का एक छोटा छोटा फंक्शन लिखा होता है, और वो सारे फंक्शन कलेक्टिवली हम बोलते हैं कर्नल में होते हैं. किस में होते हैं? कर्नल में. तो ये कर्नल जो है कोर पार्ट है ओएस का, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं. ऑल द फंक्शनैलिटीज, ऑल फंक्शनैलिटीज ऑफ ओएस. सब कुछ. यस. अब ये फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए आपको एक इंटरफेस चाहिए. क्या चाहिए? एक
इंटरफेस चाहिए और ये इंटरफेस अलग से डेवलप होता है, इसे बोलते हैं हम शेल। तो ये शेल जो है, इस शेल में आपके पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। शेल इज जस्ट अ फ्रंट एंड कि आप इस शेल को यूज करके और क्या कर सकें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकें। सो शेल इज काइंड ऑफ एन इंटरफेस। और मुझे लगता है आप सब लोगों को बेसिकली दो टाइप के इंटरफेस पता होंगे। आप कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क को यूज कर सकते हैं या फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो जो आपके एंड्रॉयड या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको ग्राफिक दिखते हैं, या तो आप फोन में टैप करते हो या फिर आप राइट क्लिक डबल क्लिक अपने माउस से करते हो और क्या मिल जाता है, आपको ऑपरेशन का इंटरेक्शन मिल जाता है। तो इंटरफेस जो है वो पहला इंटरफेस किस टाइप का है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। जीयूआई, जिसके थ्रू ग्राफिक्स देख के आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से काम निकलवा सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देते, या देते भी हैं तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ देते हैं। पुराने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिनमें आपको ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उतना अच्छा नहीं मिलता। तो फिर उन ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर काम करवाना है तो कैसे करें, एक फाइल को एक जगह से कॉपी करना है दूसरी जगह तो कैसे करें, एक पर्टिकुलर फाइल को रीनेम करना है तो कैसे करें, एक नया फोल्डर बनाना है तो कैसे करें। तो उसके लिए लिखनी पड़ती थी कमांड। क्या लिखनी पड़ती थी, कमांड। बाई चांस कभी बाई चांस आपने विंडोज का कमांड लाइन देखा हो या कमांड प्रॉम्प्ट देखा हो, तो ब्लैक कलर का होता है, वहां लिखोगे कमांड, एंटर करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर देगा। तो वो भी एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाने का, और उसी को ही शेल बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम कमांड लाइन इंटरप्रेटर। कमांड लाइन इंटरप्रेटर। तो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर करता क्या है सर, कुछ नहीं। आप अपने ओएस से काम निकलवाना चाहते हो, हाँ, उसकी फंक्शनैलिटीज यूज करना चाहते हो, हाँ, फाइल को कॉपी करना हुआ या रीनेम करना हुआ या कोई एक एप्लीकेशन ओपन करनी हुई, या तो आप डबल क्लिक कर दो जीयूआई में जाके, हाँ, या फिर एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, उसमें कमांड लिखो, स्पेसिफिक कमांड लिखी, एंटर किया तो क्या हो गया, वो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते थे वो हो गया। तो अलग अलग टाइप के शेल होते हैं। विंडोज में आपको नहीं पता चलेगा, बट जब आप लिनक्स या यूनिक्स यूज करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं कि टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट काइंड ऑफ शेल यू वांट टू यूज। इसके अलावा एक और इंटरप्रेटर होता है या इंटरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं बैच इंटरफेस, जिसमें हम मल्टीपल कमांड्स को कलेक्ट करके एक बनाते हैं बैच, और फिर उस पर्टिकुलर बैच को एक साथ रन कर देते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ कमांड एक साथ रन होती है और एक पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास सिस्टम कॉल। अब ये सिस्टम कॉल है क्या, देखिए मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। कुछ भी अगर आप हो, आपके घर में यू आर अ वेरी यंग किड, लेट्स से 8 इयर्स और 5 इयर्स और 6 इयर्स, 5 साल के एक बच्चे हो आप। अब आपके घर में आपको बहुत सारे काम करने की परमिशन नहीं है ही नहीं, कुछ ही छोटा मोटा काम कर सकते हो, आप इधर उधर घूम सकते हो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सपोज भूख लग रही है, आपको चाहिए मिल्क, तो आप मम्मी से बोलते मम्मी मिल्क दे दो, तो मम्मी मिल्क दे देगी, राइट। आपको भूख लग रही है, मम्मी खाना चाहिए, आप बोलोगे मम्मी राइस चाहिए, चपाती चाहिए, मम्मी चपाती लेके आ जाएगी, राइस लेके आ जाएगी, आप खा लोगे, राइट। आपको लगता है मम्मी अब तो घूमने जाना है, पापा घूमने जाना है, आप क्या करोगे, पापा को बोलोगे घूमने जाना है, पापा आपको लेके जाएंगे। तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, आप करते हो सिस्टम कॉल। क्या कर रहे हो, सिस्टम कॉल। व्हाट डज इट मीन, मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या है। हर चीज कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और कैसे करता है, उसके लिए कर्नल में कुछ छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। हर एक ऑपरेशन, हर छोटे ऑपरेशन के छोटे छोटे यहां पे होते हैं फंक्शंस। अब कुछ भी ऑपरेशन अगर करवाना है कर्नल में, तो इस फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल।
और इस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। बस इतना ही था, हाँ इतना ही था। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा तो उस ऑपरेशन को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं छोटे छोटे फंक्शंस। किसी भी ऑपरेशन के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है। उस ऑपरेशन को अगर मुझे करवाना है एज यूजर या किसी दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम को वो ऑपरेशन करवाना है कि ओएस ये करके दो हमें, राइट तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और वो फंक्शन कॉल को हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल। क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल। अब इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है, आपको टेक्निकल डेफिनेशन हर जगह मिल जाएगी, टेक्निकल डेफिनेशन हर जगह मिल जाएगी, मीनिंग समझ में आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो a system call is just a way for programs and users actually to interact with operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करके और उससे ऑपरेशन परफॉर्म कराने में क्या लगता है आपको, एक सिस्टम कॉल लगता है। अब ये सिस्टम कॉल से रिलेटेड और डिटेल हम बाद में देखेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। सिस्टम कॉल कौन कौन से टाइप के होते हैं, कब सिस्टम कॉल की जरूरत लगेगी, कब नहीं लगेगी, ये सब हम बाद में देखेंगे जब थोड़ा आपको डिटेल समझ में आएगी। When you will be done with entire process management, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, हाँ हाँ सर ये इसके लिए सिस्टम कॉल लगेगा, इसके लिए नहीं लगेगा, राइट तो तब आपको एक्चुअली क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड और हम बाद में बात करेंगे। बट एक चीज तो हमें ये समझ में आई, एक चीज तो हमें यह समझ में आई कि सिस्टम कॉल के बिना हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब देखिए मैं जब बात कर रहा था आपका एक छोटे बच्चे होने का, तो आपके घर में ना प्रिविलेज आपको कम मिलता था। यू कैन नॉट यूज योर द किचन टू प्रिपेयर द फूड, नो। यू कैन नॉट यूज योर किचन टू प्रिपेयर मिल्क, नो। यू कैन नॉट यूज द व्हीकल टू गो आउट, नो। तो आपके पास प्रिविलेज बहुत कम है, बहुत कम है। यस, यू कैन नॉट इवन यूज योर पेरेंट्स फोन ऑल्सो। आपको रोना है पड़ेगा कि मुझे फोन चाहिए, आप मेरे लिए कार्टून लगा दो, आपके पेरेंट्स दूर रख के और कार्टून लगा देंगे, बस फिर आप देखते रहो। बट आपको प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज किस चीज का है, घर में घूमते रहो यहां वहां छोटे मोटे, है ना, इतना ही प्रिविलेज था। 4-5 इयर्स की एज में थोड़ा बहुत खेल सकते हो आप। यस, आपकी बॉल या बैट पे एक्सेस है कि हाँ आप अपने बॉल बैट या जो भी आपके खिलौने हैं उन पे एक्सेस कर सकते हो, हाँ। तो ऐसा ही एक छोटा बच्चा जैसा ट्रीट किया जाता है एक प्रोसेस को। प्रोसेस मतलब आप जो भी एप्लीकेशन रन करते हो कंप्यूटर सिस्टम में, उसको किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि ये जो प्रोसेस है कुछ गड़बड़ ना करे सिस्टम में, अपने सही तरीके से रहे। सही तरीके से मींस कोई भी काम ऐसा कोई प्रोसेस ना कर दे जो उसके दायरे से बाहर है। गेटिंग इट? तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, प्रोटेक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट एज, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन होता क्या है, प्रोटेक्शन इज वी विल हैव टू कीप ईच एंड एवरी प्रोसेस इन सच अ वे कि प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ वो ऑपरेशन परफॉर्म करे जिसके लिए वो परमिटेड है, जिसके लिए उसके पास ऑथराइजेशन है। अदरवाइज हम मना कर देंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी व्हेन वी डेवलप द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भैया ये ऑपरेशन है जो प्रोसेस तुम खुद से कर सकते हो, ये सारे ऑपरेशन है जो तुम खुद से नहीं कर सकते। तो आप प्रोसेस बोलेगी मुझे तो पर ये ऑपरेशन की जरूरत है। जैसे तुम हो, तुमको बोल दिया कि तुम खाना नहीं बना सकते बट मुझे भूख तो लग रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने पेरेंट्स को बोलूंगा मम्मी मम्मी भूख लगी। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है क्या खाओगे, बना दिया जाएगा। अरे ठीक है मम्मी तुम्हारे मनपसंद खाना बनाएगी या नहीं बनाएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बनाएगी तो सही ना। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू हियर इज कि सिस्टम में प्रोटेक्शन जरूरी है। और प्रोटेक्शन किस चीज का, जो प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। और कुछ ही ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूजर या प्रोसेस को दिए जाते हैं कि तुम खुद से कर सकती हो, प्रोसेस खुद से कर सकता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अनप्रिविलेज्ड या नॉर्मल ऑपरेशन। अब इन दो चीजों को अलग कैसे किया जाए, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटी सी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं मोड, डुअल मोड। ये डुअल मोड के थ्रू क्या होता है, प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है। प्रोटेक्शन
इंप्लीमेंट होता है. सो दिस ड्वेल मोड ऑफ ऑपरेशन इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट प्रोटेक्शन. कैसे? एक मोड बिट होती है, इस मोड बिट को सेट कर दिया जाता है. अगर मोड बिट 1 है तो यूजर मोड में है सिस्टम, मतलब कि जब प्रोसेस रन कर रही होगी तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है प्रोसेस जो कि उसके दायरे में है, जो कि उसके लिमिटेशन में है. कब? जब मोड बिट 1 है तब. बट अगर प्रोसेस को एक ऐसा ऑपरेशन चाहिए कि मुझे एक ऐसा ऑपरेशन चाहिए जो मैं नहीं परफॉर्म कर सकता, तो प्रोसेस क्या बोलेगी? प्रोसेस ओएस को बोलेगी कि सर प्लीज डू दिस ऑपरेशन फॉर अस सर, ना सर प्लीज डू सर. Okay, so what exactly happens? This particular process will call the operating system that this is the privileged operation I want. Can you perform on behalf of me? And yes, the OS will do. जैसे कि आप अपने जब रिजल्ट लेके आते थे तो क्या आप अपने आप साइन खुद से कर देते थे? नहीं, आपके पेरेंट्स की साइन लगती थी. अब वो बात अलग है कि आप बड़े हो गए तो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन खुद से करने लगे साइन. बट द यूजुअल ऑपरेशन इज व्हाट? आपके पेरेंट्स से ही पूछना पड़ेगा, पेरेंट्स ये है मेरा रिजल्ट, साइन कर दो. वो साइन करके और आप अपने स्कूल लेके जाते थे. सो another mode is called as kernel mode और system mode और supervisor mode और privileged mode. उसमें मोड बिट होती है 0. इसका मतलब कि अगर मोड 0 है, मोड बिट मतलब कर्नल मोड है, तो फिर कंप्यूटर सिस्टम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की निगरानी में जो प्रिविलेज्ड वाले हैं. अब देखो, इसको यहां से समझेंगे. यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ तो काम कर रही है. यूजर प्रोसेस को एक ऐसे ऑपरेशन की जरूरत लगी जिसके लिए उसके पास प्रिविलेज नहीं है. एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूं यहां पे भी. जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करना शुरू करी, एक फाइल टाइप कर ली और आप इसको सेव करना चाहते हो. सेव करके आप एक लोकेशन सेट करोगे कि ये इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके, इस सब फोल्डर में जाके यहां सेव करना है. जैसे ही आपने एंटर किया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हार्ड डिस्क में जाके फाइल खुद से सेव नहीं कर सकता. प्रोटेक्शन करना पड़ेगा हमें हमारी हार्ड डिस्क का इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से. क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एरी गेरी किसी प्रोसेस को अगर हम ऐसे ही हार्ड डिस्क का एक्सेस दे दें तो एक प्रोसेस ऐसी होगी जो हार्ड डिस्क पे फाइल बना के स्टोर करती जाएगी और शो ही नहीं करेगी हमारे को. अगर ऐसा हुआ तो पूरी हार्ड डिस्क भर देगा ये प्रोसेस. तो प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा. यस, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस ओएस को कॉल करेगी कि भाई साहब ये रहा मेरा पर्टिकुलर फाइल, इसको हार्ड डिस्क में जाके स्टोर कर दो इस लोकेशन पे. तो क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सिस्टम कॉल करेगा. ये सिस्टम कॉल के थ्रू सबसे पहले तो मोड बिट जो है वो चेंज हो जाएगी, कर्नल मोड में आएगी. कर्नल मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम इस जो भी कॉल किया है इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. अच्छा, ये वाली फाइल ओके दो मुझे, मैं स्टोर कर देता हूं. फाइल जाएगा हार्ड डिस्क में, स्टोर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे रिलेटेड जितना भी पूरा ऑपरेशन है खत्म. और उसके बाद में हम कहां जाएंगे? रिटर्न करेंगे कहां पे? उस प्रोसेस के पास. तो प्रोसेस के पास जब वापस जाएंगे, ओएस बोलेगा तुम्हारा काम खत्म हो गया. हो सकता है तो जो प्रोसेस है वो आपको एक मैसेज भी दे दे, फाइल इज सेव्ड. राइट? तो ये मोड बिट या डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन आपको समझना पड़ेगा क्यों यूज करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए. और यहां पे जब कर्नल मोड में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो यहां पे कुछ प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं. वो इंस्ट्रक्शन ये यूजर प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट कर सकती. इस डुअल मोड से सिस्टम प्रोटेक्ट करता है अपने आप को और बाकी के सारे रिसोर्सेस को कि यूजर प्रोसेस इस मोड में जाके या ऐसा ना कर दे, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म ना कर दे जिसके लिए वो उसके पास प्रिविलेज या उसके पास परमिशन नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है. सो आई होप आपको ये जो अभी तक का मैंने जो समझा है वो पूरा क्लियरली समझ में आया.
ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहां खत्म हुआ। कल जब नेक्स्ट क्लास होगी विच विल बी ऑन मंडे, तो मंडे हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब नेक्स्ट क्लास से हमारा जो सेशन है एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली मतलब काफी सारी डिटेल्ड चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आई हैव टोल्ड यू वन पर्टिकुलर थिंग दैट यूजुअली व्हाट हैपेंस, द एक्साइटमेंट इन द स्टार्टिंग इज टू मच, बट लेटर ऑन व्हेन द कोर्स गोज upfront or the preparation goes into more detail, the students will lose the concentration and their preparation and their excitement. So I would like you to continue this passion and this particular excitement, enthusiasm, so that you will definitely learn a lot from this course and you will gain a lot of confidence in this particular course. क्वेश्चन भी करेंगे, सीखेंगे भी एग्जाम्पल्स के थ्रू, और बड़ा मजा आएगा इस सेशन में आप लोगों को। बट कंटिन्यू रखिएगा, मैं चाहता हूं आप लोगों का अच्छा रैंक आए और आप भी यही चाहते हैं, दोनों इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, तो लगे रहते हैं। आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है, सुनते जाइए। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो ये रहा चैनल जिस पे आपको ये लेक्चर के पीडीएफ मिल जाएंगे। जितने भी लेक्चर यहाँ इस चैनल पे होते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आपको